Good morning, everyone. In this video, we will start with whatever I was stopped from where, and in this video, we will start from that point. So, in this video, basically, we are start with a range of indexing. Yeah, you can say range of indexes. Python में हम range of indexes क्या होता है समझेंगे. So, basically, a range of indexes means to say uh, we have to specify the negative index first if you want to start the search from end of the list. Let's start with coding part. So basically we have to declare the list, and we have a name variable this list, and we have to assign the list of the items. Let's take this one. Okay, this is the list part and item, and now we have two indexes, so we have to write print this list minus 1 2 3 4. Yes, you can take minus 5 2 for 2 clear to use ratio minus 5 to minus 1. All right, now run it. Yes, when we start with indexing from negative side, that is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, and minus 5 is banana, so it prints banana, and minus 1 is melon. So minus 5 to 1, whatever the item is there, it will be showing. But yes, obviously minus 1, we don't include minus 1's indexes, that is melon, and our element is from kiwi to banana. That is the indexes, that is the concept of ranges of indexes. इस तरह से हम ranges of indexes निकाल सकते हैं. ठीक है. Now uh, the second concept is item exist. Check if item exists or not, right? So for that, what we yeah, topic is check if item uh, you have to item exist or not. इसके लिए आपको कोड लिखना है, सिंपल है. पहले आपको एक लिस्ट बनाना होगा. दिस लिस्ट नाम लेके कर रहे हैं तो उसको करते हैं, लेकिन दिस लिस्ट एंड उसमें एलिमेंट डाल देते हैं सारा. Yeah, we will mention this element here, close with square bracket, and obviously if the we write one thing, if let's say we take any items, let's apple we take. All right, if apple in this list है कि नहीं, इफ एप्पल है कि नहीं वो प्रिंट करेगा. अगर है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा. तो वी हैव टू राइट प्रिंट यस एप्पल इज इन फ्रूट लिस्ट. ओके, so we have to print like that. Now we will run. Here is apple in this list, it will show apple. Yes, apple is in list. What if, so the same things I will copy and I will write something else. If we apple, if we write well print yes, एक और फंक्शन को लेते हैं, कॉपी पेस्ट
नो, नो कमांड, नो oil is in fluid. What? There nothing. If oil in list print, yes, print, no. Let run it. Not so anything. तो बेसिकली वो कमांड सिर्फ था हमारे आइटम को सर्च करने के लिए, ठीक है। एंड चेंज लिस्ट आइटम, इस पर हम लिस्ट आइटम में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। चेंज लिस्ट आइटम मतलब कोई आप हमारे पास आइटम दिया हुआ जैसे सब आइटम है, और इस आइटम में हम एप्पल के बदला कुछ और डालना चाहते हैं। उस चीज को करने के लिए हमारे पास कोड क्या है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, कट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल द एंट्री व्हाटएवर यू वांट, एक इस लिस्ट में इसी को लेते हैं, ठीक है। इसी को लिए इसमें हम एप्पल की जगह कुछ और डालना चाहते हैं, उसको लिखना इंडेक्स स्टूडेंट करके, लेट्स से आई वांट्स टू ब्लैक। सॉरी फॉर अ वेट, आई हैव सो ब्लैक करंट है, थोड़ा सा काम पे तो थोड़ा उधर बिजी हो गया था, बाकी वट एवर यू कैन ब्लैक स्टूडेंट, ठीक है। प्रिंट have to use this list. You can see the what the things is error. There is error in 36. Black coin list one. One is error. What error is? In 36 line to this list, apple banana graphs print list one. It is bleak current. Print list is not defined. Okay, print equal to this list. I have defined the print list. Sorry, print not the print list, it's this list. Sorry for my mistake. It's this list, and now here you are adding one element in positions of one. Apple, uh, instead of banana, you will add a black currant. Grapes, coconut, kiwi, melon. ठीक है, तो ये समझ गया आप क्या है आपका। हाँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। रेंज वैसे कि से मेरे पास लिस्ट है, हम चाहते हैं कि 1 से 3 तक का आइटम चेंज किया जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो 1 से 3 तक का, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड है, तो ये हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली इसका नाम देंगे चेंज ए रेंज ऑफ आइटम वैल्यू। चेंज ए
ठीक है, दिस लिस्ट में हम्म, चलिए जो भी है इसी को डाल देते हैं बात। सेम चीज यू कैन, हाँ, एक अनदर थिंग ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉपी एंड लेट्स से पेस्ट। ठीक है, इस बार ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, इसमें हम रेंज ऑफ लिस्ट को चेंज करेंगे इस बार। वन। ठीक, ठीक है, ठीक है ना। रेंज ऑफ लिस्ट के लिए दिस लिस्ट तो डिक्लेयर करना होगा। लेट से 1 2 3 करना है चेंज। ठीक है, क्या चेंज करना है उससे भी हमें डिफाइन करना होगा। लेट से ब्लैक करंट वाटरमेलन, whatever you can take, no at all problem। चलिए ठीक है, now print this list function is going to print। चलिए तो क्या आएगा यहाँ पे चेंज, कुछ सोचिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 किए तो इंडेक्सिंग 0 है, 1 से 3 तक में चेंज होगा, मतलब कि 1 2 3 को इग्नोर करेगा तो एप्पल ब्लैक करेंट एंड वाटरमेलन इस तरह कुछ आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, वाटर नोट दिस अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेड। ओके, दिस लिस्ट, ओके, इंडेंटेशन ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये, हाँ देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आ गया था। देखा एरर किस चीज़ का था? एरर था आपका इस इंडेंटेशन का। ठीक है, हमने 3 बार कर दिया था। अगर आप इंडेंटेशन एक से अधिक दीजिएगा ना तो आपको एरर की चांस है। आपको इंडेंटेशंस को भी माइंड में रखना होगा। ऑल राइट, तभी आपका जो है कोड रन करेगा, अदरवाइज इट विल शो अ अनएक्सपेक्टेड या इंडेंटेशन एरर यू विल गेट। ठीक है, एंड ऑल राइट, दैट्स डन। So now insert item. So to insert item new list without replacing any existing values, we use insert function। किसी आइटम को इंसर्ट करते हैं बिना किसी आइटम को रिमूव किए हुए, तो हम इसमें इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो टॉपिक क्या है मेरा? इंसर्ट आइटम। ऑल राइट, सो लिस्ट बनाते हैं। चलिए इसी को आइटम को इंसर्ट कर देते हैं और क्या। ऑल राइट, वी हैव टू रिमूव इंडेंटेशंस। ठीक है, अब हमें किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, बेसिकली हमें वो इंडेक्स बताना है। एंड आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करके उस एलिमेंट को आप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव यूज्ड दिस लिस्ट क्लास डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। किस पे? मान लीजिए 2 पे। और क्या करवाना है तो मान लीजिए कि काउट, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, प्रिंट लिस्ट कर दीजिए। चलिए ठीक है, रन करें। हो, स्टिल एरर, व्हाट के, क्लोज नहीं किया ना। यस, ऑल राइट, ठीक है। 4 में 1 2
3 4 में क्या है? फिल्म। ओ यस, लिस्ट एक्स्ट्रा चीज। ऑलराइट, ठीक है, आ गया। इसमें क्या किए थे हम कि इंडेक्सिंग टू पे काउ को ऐड किए थे, 0 1 2 काउ ऐड हो गया, उसके बाद 3, सारा चीज ठीक है। सारी चीजें आसान ही होती है, राइट, काफी। अब ऐड लिस्ट आइटम है, रिमूव लिस्ट आइटम है, लूप कंसिस्ट, बहुत सारा है। ऐड लिस्ट आइटम में करें, चलिए ठीक। अब किसी आइटम को ऐड करना है ना, तो हमें अपेंड मेथड का यूज करना होता है पाइथन ऐड लिस्ट में। अगर हमें किसी चीज को अगर ऐड करना है तो हमें पाइथन अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं किसी चीज को ऐड करने के लिए। टॉपिक लिख लीजिए एक बार, क्या कर रहे हैं आप? अपेंड आइटम, ठीक। एंड चलिए ठीक है, आइटम को इंसर्ट करते हैं, दिस लिस्ट। चलिए ठीक है, इसी को यूज कीजिए, ठीक। इसका यूज करें, करते हैं। सो करिए, आप खुद से कर सकते हैं। दिस लिस्ट में हमने एक अपना लिस्ट बना लिया है, ठीक है। हाँ, अब इसको आइटम को अपेंड करने के लिए हमें एक फंक्शन अपेंड का यूज करना होता है। दिस लिस्ट डॉट अपेंड करते हैं, और इसलिए ऑरेंज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट कर लीजिए दिस लिस्ट को फंक्शन से, प्रिंट फंक्शन से। चलिए ठीक है, ऑरेंज देखिए यहाँ पे ऑरेंज ऐड होगा, कहाँ पे ऐड होगा या बाय डिफॉल्ट ऐड होगा वो देखते हैं। लास्ट में हुआ है। अगर हम 2 पे करना चाहें, लेट से 2 करके इंडेक्सेस दे के करें, सो 2 भी ऐड हो गया, माय गॉड। ओके, ओके, चलिए ठीक है। तो आइटम ऐड हो रहा है, इंसर्ट के लिए इंसर्ट फंक्शन यूज कर लिए हैं। चलिए ठीक है, इसके लिए काम हो गया। अब रिमूव लिस्ट, किसी आइटम को रिमूव करने के लिए हमें रिमूव मेथड का यूज करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए रिमूव का भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो हमारा टॉपिक थोड़ा नेमिंग कर दे, चलिए और थोड़ा जूम कर देंगे। ऑल राइट, बहुत ठीक है, काफी जूम किए हैं ताकि आप क्लियरली दिख सके। इस बार मेरा है रिमूव स्पेसिफाइड आइटम। रिमूव आइटम लिखो, इतना इंग्लिश क्यों लिखना? देखिए, किसी भी डेटा, कलेक्ट डेटा हुआ, उस डेटा में से किसी आइटम को रिमूव करना है तो हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं बेसिकली। ऑलराइट, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे दिस लिस्ट नाम से। तो इस बार कुछ ले लेते हैं, क्रिकेटर का नाम, MS धोनी। डबल कोट्स, किंग कोहली। एंड थर्ड इज, so we will start the things we need to. So we need to do things very carefully. We will use the function list method, this list, that's why, and we will use the remove keyword.
So we need to do work and try to I remove, let's say, MS Dhoni. So we have to declare here the name of the whatever you want to remove, and that's done. Print this list, call the function. So we will try to do the work, and what you will get? You will get Dhoni has to remove the name of Dhoni is removed from this item. So, and in this way we can careful. We will do our work very carefully, and we will do one more concept, and in this way we can perform things as much as you can do. So you need to careful about that, and we will do one more question. ले जा ले जा देख ले. So yes, in this way we can remove the items and specify index. Obviously, if you want to remove the item from a specified index, so we will uh, use very. You have to mention the sirf indexes also. P rest. Obviously, in this place we will only describe the indexes. If you write the indexes, uh, yes, there is error. What error is? Obviously, we have to use a pop. Now you will get MS Dhoni, Rohit Sharma, and but Dhoni is not oh yes, yes. Virat is missing because indexing start with 0 and 1. And I have declared to pop indexing 1. That's why it's moved. So now we will stop these things here, and in next video I will resume it. Thank you. So what I'm clicking, I'm still